بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج تقریباً 6-7 مہینے بعد پھر آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اور میں بڑا مشکور ہوں اپنے بھائیوں کا جو ہمیشہ یہاں تشریف لاتے ہیں، اور ہوتا ان کے ساتھ بھی وہی ہے جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ آتے ہیں یہاں بیٹھے رہتے ہیں، پھر تاریخ ملتی ہے کہ فلانے دن آ جائیں. تو آپ کی مہربانی ہمیشہ رہی ہے. بہرحال یہ نیب کے معاملات بار بار پہلے بھی ذکر کرتے رہے ہیں، آج بھی بات کرنی پڑے گی کہ یہ ادارہ وہ ادارہ ہے جو جس نے اس ملک کو مفلوج کیا ہوا ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ آج یہ 5واں سال ہے یہ کیس چل رہا ہے. اس عدالت میں ہم آتے ہیں اور یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ان عدالتوں میں کیمرے لگائیں اور پاکستان کے عوام کو دکھائیں کہ جو ناانصافی ان عدالتوں میں ہوتی ہے اس کی کوئی نظیر کسی بھی عدالتی تاریخ میں نہیں ہے. آپ یہاں ابھی اندر جائیں، آپ کو سینئر افسران حکومت کے ملیں گے، کاروباری حضرات ملیں گے جو 5-5, 8-8, 10-10 سال سے یہاں پر انصاف کے تلاش میں بیٹھے ہیں. بس تاریخیں لگتی ہیں اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے. پچھلی حکومت نے 5 ترامیم کی، حالانکہ ترمیم ایک چاہیے تھی کہ اس جو نیب کا آرڈیننس ہے اس کو ریپیل کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے، لیکن انہوں نے 5 ترامیم کی. اور پچھلے چیف جسٹس صاحب جاتے جاتے آخری ہفتے کے اندر ان ترامیم کو رد کر کے چلے گئے. یعنی جو پارلیمان نے قانون بنایا تھا، چیف جسٹس صاحب نے بینچ اپنی مرضی کا بٹھایا اور کہا کہ یہ اب ملک کا قانون نہیں ہے. میں نے کبھی بھی یہ پٹیشن فائل نہیں کی کسی عدالت میں کہ ہمیں کسی ترمیم کے تحت ریلیف ملے. میں پہلے بھی یہ کہتا تھا کہ آپ ان کیسوں کو چلائیں. اس عدالت میں جو کیس لگا ہے وہ کیس یہ ہے کہ پی ایس او کے ایم ڈی، پاکستان اسٹیٹ آئل کے ایم ڈی لگائے گئے اور وہ غلط لگائے گئے. تو اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آدمی آ کر عدالت میں یہ کہے کہ کیا غلطی ہم سے ہوئی ہے. 4 ہم حضرات ہیں اور پچھلے یہ 5واں سال ہے کہ ہم ان عدالتوں میں پھر رہے ہیں. تو انصاف کا تقاضا کہاں گیا، انصاف کہاں گیا، یہ آج کسی کو نظر نہیں آتا. یہ بد نصیبی ہے. اور جب آج کے افسران ان افسران کی حالت دیکھتے ہیں تو کوئی شخص بھی کام کرنے کو تیار نہیں ہے. اس بات کا کسی کو احساس نہیں ہے. بہت سے جج جب یہ کیس چل رہا تھا ان عدالتوں سے ریٹائر ہو کے چلے گئے، کوئی ٹرانسفر ہو گئے، کیس وہیں پڑے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ان کیسوں کو چلائیں، پاکستان کے عوام کو دکھائیں یہاں پر کون سی کرپشن ہوئی ہے، کون سا غلط کام ہوا ہے. ہمیں بار بار عدالت میں کہا جاتا ہے کہ اس کیس میں کرپشن کوئی نہیں ہے. تو پھر ہوا کیا ہے، ہمیں یہ بتا دیں. یہ آج تک کوئی بتا نہیں سکا کہ ان کیسوں کی حقیقت کیا ہے. اور یہ بد نصیبی ہے کہ آج نیب جیسا ادارہ ملک کے اندر موجود ہے جس کا مقصد صرف سیاست کو توڑنے اور جوڑنے کا کام ہے اور کچھ نہیں ہے، کہ کسی طرح سیاستدانوں کو دباؤ میں رکھا جائے اور جب بھی ضرورت پڑے تو یہ کیس ان کے خلاف استعمال کیے جائیں. یہ بد نصیبی ہے، یہ ملک کی بد نصیبی ہے کہ جب آپ ان لوگوں کو جو اس ملک کے اعلیٰ عہدوں پر رہے ہوں ان کو انصاف نہ دے پائیں تو پھر عام آدمی انصاف کی کیا توقع رکھے گا. یہ معاملہ ذرا میں امید کرتا ہوں کہ موجودہ چیف جسٹس کا نوٹس لیں گے. نیب کے چیئرمین بھی نئے ہیں، وہ نوٹس لیں اور ان کے اختیار میں ہے کہ ان کیسوں کو یا پروسیکیوٹ کریں، یہاں پر وٹنسز آئیں بات کریں، یا ان کیسوں کو ختم کریں. یہ مناسب نہیں ہے، یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے کہ لوگوں کی زندگیاں سالہ سال 5-5, 8-8, 10-10 سال وہ رکی ہوئی ہیں، نہ کاروبار کر سکتے ہیں، نہ کوئی اور کام کر سکتے ہیں، نہ نوکری مل سکتی ہے. یہ انصاف ہوتا ہے؟ یہی بات ہم نے پہلے بھی کی ہے، آج بھی کرتے ہیں. اور میں پھر گزارش کروں گا اس حکومت سے بھی، اگلی حکومتوں سے بھی، کہ اس نیب کے ادارے کو ختم کر دیں ورنہ آپ کا ملک نہیں چلے گا. جناب نواز شریف صاحب آ گئے ہیں، آپ استقبال کے لیے گئے، کیا آپ کو بلائیں گے؟ جی استقبال کے لیے بلایا نہیں جاتا. استقبال وہ سیاسی بات. جی آپ گئے نہیں استقبال کے لیے؟ نہیں، میں وہاں نہیں تھا جناب. یہ بتائیں سر، آپ تو عوامی آدمی، جی عوامی اجتماعات میں رہنے سے آپ خوشی دیکھتے ہیں
तो ये बड़ा इज्तिमा हुआ है, उसमें आप जो नहीं गए, आपको इज्तिमा इतना बड़ा अच्छा नहीं लगा? नहीं। मियां साहब की आमद अच्छी नहीं मेरे भाई, इज्तिमा में जाना ज़रूरी नहीं होता, हर इज्तिमा में जाना। मैं नहीं गया, मैंने पहले भी जिक्र किया है। लीडरशिप नहीं हो तो जी, सवाल तो बनता है। मैं पार्टी का सीनियर लीडर नहीं हूँ लेकिन मियां साहब मरी में आप कराची में लोग तवक्को कर रहे थे जी, मैं अदालत में खड़ा हूँ। सर, आपकी बातों से इस तरह अंदाजा हो रहा है कि बहुत जल्द आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, कोई नई पार्टी का जो है वो अनाउंस करने वाले हैं। इस मैं तरह वो की सूरत प्रेस हाल है। कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं दूसरी जमात के लोग हैं। हमारे जी, जब हुक्म फरमाएंगे जी। अच्छा ये बताएं सर, अगली जो फैसला है मिलिट्री कोर्ट को खत्म कर दिया गया है, तो आप इत्तेफाक करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ? मैं पहले कहता रहा हूँ कि कोई स्टैंडिंग मिलिट्री कोर्ट नहीं है, कम से कम मेरी नॉलेज में नहीं है। हो सकता है ख्वाजा नवीद साहब बता दें को है या नहीं है। मिलिट्री में कोर्ट मार्शल होता है, एक समरी कोर्ट बनाया जाता है, वो कोर्ट मार्शल करता है। उसमें कुछ जुरिस्डिक्शंस हैं जहाँ पर सिविलियन अगर मुलव्वस हो किसी ऐसे मामले में किसी फौजी अफसर के साथ, तो उसका आप कर सकते हैं, उसको वहाँ पर ट्रायल कर सकते हैं, और माजी में हुए भी हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस दे दी है कि ये ट्रायल नहीं हो सकेंगे, तो फिर जो भी दूसरा अदालत है उसके अंदर वो ट्रायल हो जाएगा। अच्छा शाहिद साहब, आप नैब कवानीन पर पहले भी तनकीद करते रहे, अब भी तनकीद करते हैं, लेकिन जब आप वज़ीर आज़म थे, बतौर वज़ीर आज़म, तो आपने इस कानून को रिपील करने की कोशिश नहीं की, या बल्कि अटैम्प्ट कोई की नहीं आपने। दूसरा ये, सुप्रीम कोर्ट ने एक नई नज़ीर बना दी है कि एक लाइव कवरेज का सिलसिला कोर्ट में, तो आपकी एक डिमांड होती थी, आप डिमांड करेंगे? जी बिल्कुल, मैं अभी आपसे सामने कह चुका हूँ कि यहाँ भी कैमरे लगाएं और लाइव बताएं लोगों के हो क्या रहा है। उनको बताएं कि हम हर दूसरे तीसरे हफ्ते पेश होते हैं और फिर तारीख मिल जाती है। हकीकत बताएं अवाम को। और जो नैब की बात है, मैं हमेशा कह चुका हूँ कि इसको कोई एक जमात एक शख्स रिपील नहीं कर सकता, ये कंसेंसस से होगी। 2013 से 18 तक से बड़ा काम हुआ, लेकिन आखिरी वक्त पे उसमें जो सेनेट के अंदर बिल था उसको वहाँ पे ना PTI थे ना पीस पार्टी ने सपोर्ट किया। भाई साहब ये बता दें, मियां साहब आ चुके हैं, क्या आपका उनसे मुलाकात का ये इरादा है? नंबर 1, या आपका सियासी लाएमल आइंदा का क्या होगा? क्या नून लीग के टिकट पर आप इलेक्शन लड़ेंगे? मेरे भाई सियासी लाएमल मैं बता दूंगा। आज सियासत की बात आपने करनी है तो लहदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें। सियासी लाएमल ये है कि मैं पहले कह चुका हूँ कि जो मुल्क की मौजूदा सियासत है इसके अंदर मैं इलेक्शन लड़ने का कायल नहीं हूँ, कम से कम 20 दफ़ा कह चुका हूँ। क्योंकि ये जो सियासत है ना, ये इलेक्शन जो है ये मुल्क के को रिलीफ दे पाएंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा सोशल मीडिया पे मेरे भाई, मैं नून लीग से अलग हूँ या ना हूँ, सवाल ये नहीं है। मैं सवाल आपके सामने रखा है मुल्क की सियासत का। जिस इलेक्शन में ना अवाम को फ़ायदा मिले ना मुल्क को फ़ायदा मिले, जिस सियासत से मुल्क का नुकसान हो, अवाम का नुकसान हो, मैं उसका कायल नहीं। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा 76 साल गुजर चुके हैं, मुख्तलिफ सियासी अदवार गुजरे, सियासी जमातें सामने आई हैं। ये बताइएगा इस्टेब्लिशमेंट, आप जो मौजूदा इस वक्त सियासत चल रही है उसमें इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो गई, इस वजह से आप थोड़ी सी सियासत से अलग हुए हैं या कोई और मामला है? नहीं, देखिए मैंने कहा ना, जो सियासत मुल्क के हक में ना हो, अवाम को रिलीफ ना दे सके, मैं उसका कायल नहीं हूँ। सर आपसे लोग सवाल इसलिए कर रहे हैं कि आप 11 खिलाड़ियों में शामिल होते थे नून लीग की, इसलिए थोड़ा सा दूर है। मैं 11 खिलाड़ी में नहीं था, मैं दूसरे नंबर पे था। मैं देखिए, ये सियासत जो होती है ये आपका अपना काम होता है। मैं हमेशा सियासत को जिम्मेदारी समझा है और उसी को इस तरह काम किया है। जब मैं जिम्मेदारी पूरी ना कर सकूं, जब मैं जिस बात का कायल ना हूं, उसमें हिस्सा नहीं लेता। शाहिद साहब, ये सवाल बार बार इसलिए आ रहा कि एक री इमेजिनिंग पाकिस्तान का एक गलगला उठा, पूरे पाकिस्तान में आप लोगों ने सेमिनार्स किए, फिर अचानक नई पार्टी का शोर शुरू हो गया, फिर अचानक पता चला जी आप मियां साहब से मुलाकात के लिए लंदन पहुंच गए, उसके बाद डाएं फिश। ये आपकी एक सोच है। री इमेजिनिंग पाकिस्तान इसलिए था कि जगाया जाए इन जमातों को, कि जागे और मुल्क के हालात को देखें कि मुल्क कहाँ पर है। आज बदकिस्मती ये है, आप मुझे एक सियासी लीडर का बयान दिखा दें जिसने मुल्क की बात की हो, जिसने अवाम की तकलीफ की बात की हो, उसके हल की बात की हो। आज बात सिर्फ होती है इक़्तिदार की, इक़्तिदार में कैसे आएंगे, हर कीमत पर आएंगे। ये सियासत का मैं कम से कम कायल नहीं। अच्छा सर, जो हो गई बात। आप जब तकरीरें नहीं सुनते किसी की, तो आपको कैसे पता कौन सा सियासतदान क्या कहता है? आपसे पता चल जाता है। सर, ये आज़ादी की आप बात करते हैं, आज़ादी सियासत भी है इस मुल्क में? आज़ादी सहाफ़त है। आज़ादी सियासत जितनी आज़ादी सहाफ़त है इतनी आज़ादी सियासत है। अच्छा, ये चीज़ें बेहद जुड़ी होती है। मौसम तब्दील हो रहा है मुल्क का, कुछ सियासी मौसम भी
आपको बतौर एक सीनियर? मैंने कहा सियासी मौसम की तब्दीली से क्या होगा? क्या मुल्क के मसाइल हल होंगे? मुझे वो तब्दीली चाहिए जिससे मुल्क के मसाइल हल हो, जिससे अवाम को रिलीफ मिले, ये मुल्क तरक्की करे। आप सब हजरात अपने हालात देखें कि आप आज के हालात क्या आपके बेहतर हैं। आज आप आम आदमी से सड़क पर पूछें, आपको पता चल जाएगा मुल्क के हालात क्या हैं। इसको हल करने के लिए कोई कोशिश हो रही है? मुझे तो नज़र नहीं आती। नहीं, आप वज़ीर-ए-आज़म रहे तो आप बताएं, कोई हल बता रहे हैं? मैंने री-इमेजिनिंग पाकिस्तान में हर रोज़ हल बताया है। जब तक आप आइन और कानून के मुताबिक सियासत नहीं चलेगी, मुल्क के निज़ाम नहीं चलेगा, रिफॉर्म्स नहीं होंगे, आपका मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। अच्छा सर, ये बताइए, मैं बार बार ये कहता हूँ, ये नैब रहेगा तो मुल्क नहीं चलेगा। बताइए, नवाज शरीफ साहब ने दावा किया है कि अब हम आगे हैं, सियासत में चेंज भी आएगी और ये मुल्क तरक्की भी करेगा, बहुत सी नई पॉलिसीज जो है वो अपने साथ लेके आए। आप ये ठीक बात है, पॉलिसीज आए, अवाम के सामने आए, उनको हल लीडरशिप, मुल्क की जुडिशल लीडरशिप इकट्ठी नहीं बैठेगी, मुल्क के मसाइल का हल नहीं निकलेगा। ये बात याद रखें। आज अगर हमको मुल्क का एहसास हो, ये 6-7 लोग हैं, 8 लोग हैं, 10 हैं, जितने भी हैं, एक टेबल पर अवाम को बैठे हुए नजर आए, उनकी तकलीफ की बात करते हुए नजर आए, मुल्क के मसाइल का हल ढूंढते हुए नजर आए, फिर मुल्क आगे चलेगा। वरना हमने माजी में भी बहुत मार खाई है, इसके बाद भी मार पड़ी है। सर, आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है? क्या इलेक्शन अगले 3 महीने में, 6 माह में आप होता हुआ देख रहे हैं? ये मेरी सियासी बसीरत का काम नहीं है, ये कानून और आइन का काम है। आइन के तहत इलेक्शन होंगे, इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। अगर वो कहते हैं कि जनवरी में होंगे तो उनकी बात पर यकीन करना पड़ता है। आप जैसा आदमी अगर इस सिस्टम से मायूस है तो अवाम खैर की तवक्को कैसे रख सकती है कि मुल्क में? मैं कभी मायूस हो नहीं सकता, मेरे पास ये गुंजाइश नहीं है। अच्छा, अगर मियाँ साहब इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान में, तो वो है कि जनवरी में तो मार्च तक हो जाएंगे, अगर वो जिस तरह आए हैं लगता है कि वो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, तो आप उनकी कैबिनेट में होंगे? नहीं, मैं देखिए, मैंने पहले कहा कि मैं सिलेक्शन का कायल नहीं हूँ, कैबिनेट में कैसे हो? सदाकत अब्बासी साहब वहाँ से इलेक्शन लड़े, वो कायल हो गए अब। अच्छा सर, ये 8-10 लोगों की आपने बात की है कि 8-10 बस लोग ठीक साथ है। बैठे एक टेबल पे, तो उसमें खान साहब की भी आप ये मांग करें? जी, सब जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, रिहा हो या ना हो, पेरोल पे आ जाएं, लेकिन बैठना पड़ेगा। ये बात समझनी पड़ेगी हमें। नहीं बैठेंगे तो फिर कल बैठना पड़ेगा, नुकसान ज़्यादा होगा। कल नहीं बैठेंगे तो परसों बैठना पड़ेगा, तो बेहतर है कि आज बैठ जाएं। लेकिन शाह साहब, जो बात आप समझाना चाह रहे हैं, खान साहब तो किसी के साथ हाथ मिलाना नहीं चाहते, बैठना नहीं चाहते। बस फिर नहीं होगा, फिर सबको तकलीफ होगी। एक दिन तो बैठना ही पड़ेगा।